Assalamu alaikum everyone. We are here with our new topic that is about the understanding of the advantages and disadvantages of buying an existing business. In this we will get the basic understanding of what pros and cons are associated to buying an existing business, and we will further talk in detail about it. But before moving on, let's take a look in at what we discussed in our previous lecture. In our previous lecture we talked about what are patents, what are the necessary steps that are required to register a patent, and then we further discussed about the benefits of the associated to registering those patents, and next to which we discussed about the concepts of trademarks and copyrights and associated both of these to the core concept of intellectual property rights, and then we discussed the real life implementation of both of these concepts. So coming back to the topics of today, today we will first try to build a base by understanding the core advantages and disadvantages of buying an existing business. Then we will next discuss about the steps, the optimal steps that are involved when we are buying an existing business. And next we will discuss the critical areas that a buyer should look into before buying an existing business, so that he can make a good choice when faced with many other choices in the market. So first we are going to look at the key questions that one should consider before buying an existing business. First one is the right type of business for sale in the market in which you want to operate. देखें, जब भी आप कोई बिज़नेस लेने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आपने अपना जो है एरिया डिफ़ाइन करना होता है कि आप किस इंडस्ट्री में, किस मार्केट में, किस जोग्राफिकल लोकेशन में और किन लोगों को आप टारगेट करने जा रहे हैं. जब आपके पास इन सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर होता है, देन यू आर fully able to define the right type of business that is suitable for you and the right type of market that you are going to operate in. Next question is what experience do you have in this particular business and the industry in which it operates? How critical is experience in the business to your ultimate success? This is a very good point because अकॉर्डिंग टू रिसर्च इट हैज़ बीन प्रूवन कि जिस इंडस्ट्री का आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, सबसे पहले तो दो तीन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपके क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ एक जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि एक एंटरप्रेन्योरल जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है वो शायद अपनी अर्ली 20s में जो है स्टार्टअप करता है अपने बिजनेस को, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अकॉर्डिंग टू रिसर्च इट हैज़ बीन शोन कि आपके जो मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दे आर इन देयर 40s, राइट, कि वो अपने 40s में जाके अपने एंटरप्रेन्योरल वेंचर जो हैं वो लॉन्च करते हैं और वहाँ से जो है वो अपनी चीज़ों को बूस्ट करते हैं. अब 40s में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं? बिकॉज उनके जो अर्लियर ईयर्स होते हैं उसमें उन्होंने इंडस्ट्री नॉलेज गेन कर लिया होता है और वो थ्रू डिफरेंट जॉब्स करके उन्होंने किया हो या अदरवाइज इंडस्ट्री के ट्रेंड्स ऑब्जर्व करके किया हो, बोथ ऑफ दीज थिंग्स वर्क, या फिर उन्होंने कुछ स्मॉल बिजनेसेस जो हैं उनमें काम करके जो है वो एक्सपीरियंस गेन किया हो. तो बाय द एज ऑफ 40 यू हैव मोर देन एनफ एक्सपीरियंस कि आप अपना बिजनेस या अपना एक एंटरप्रेन्योरल वेंचर जो है लॉन्च कर सकते हो. तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी क्रिटिकल दैट you take your experience into account. लेकिन there are few exceptions जहाँ पे आपके businesses जो होते हैं already established होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा extreme innovation नहीं होती है, वहाँ पे एक common knowledge और एक basic market knowledge भी enough होता है to get into business. So you have to decide if you are going for something very technical and it requires prior knowledge, so it's better that you have it on your own rather than कि आप हायर करो एक्सपीरियंस लोगों को. इट इज़ बेटर दैट यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, राइट. और फिर जिस तरह मैंने कहा कि
कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें इंडस्ट्री नॉलेज बहुत आपको एक्सट्रीम लेवल पे नहीं चाहिए होता है, बहुत एक्सटेंसिव नहीं चाहिए होता, तो वहाँ पे आपने डिसाइड करना होता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू, इफ़ द एक्सपीरियंस इज क्रिटिकल टू योर बिजनेस इन विच यू आर ट्राइंग टू जंप इनटू और नॉट। थर्ड इज़ व्हाट इज़ द कंपनीज पोटेंशियल फॉर सक्सेस। जो भी आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस ख़रीदने जा रहे होते हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को फिगर आउट करना कि वो जो कंपनी है उसका अपना एग्जिस्टिंग पोटेंशियल कितना है सक्सेस का, क्योंकि आप भी कभी भी जो है कोई ऐसा बिज़नेस ख़रीदना या ओन करना नहीं चाहोगे जिसके सक्सेस चांसेस जो हैं बहुत लो हों, क्योंकि वो फिर आपके जो है प्रॉफिटेबिलिटी जनरेशन वेंचर बनने के बजाय वो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी बन जाएगा और वो आपको फर्दर लॉस की रीज़न आपकी बनेगा। So that's why our question 3 is very much valid one. And next is what changes will you have to make and how extensive will they have to be to realize the business's full potential. It is again very much important कि इसमें जब भी आप बिज़नेस ख़रीदने जा रहे हो तो उसमें आपने ये चीज़ रियलाइज़ करनी होती है, उसमें आपने ये चीज़ एवेल्युएट करनी होती है कि उस बिज़नेस में आपको जो एग्जिस्टिंग उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है आपके पास, जो टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें आपको कितनी फर्दर या उसके जो प्रोसीजर है, मैनेजमेंट प्रोसीजर्स हैं, उसमें आपको कितनी चेंजेस करनी पड़ेंगी to make that business more successful और to have it generating the profit। क्योंकि अगर आप कोई ऐसे बिजनेस को जाके बाय कर लेते हो जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े या इवन आपको लोगों को दोबारा से हायर करना पड़े, जिस तरह हमने स्टार्ट में अपने अर्लियर लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि इवन द हायरिंग प्रोसेस इज़ अ क्रूशल वन, क्योंकि उसमें जब आप एक न्यू इंडिविजुअल को लाते हो तो आपका एक तो हायरिंग प्रोसेस पे आपके जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक एक्सटेंसिव टाइम लगता है, एक एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ मनी लगती है, आपकी फाइनेंसेस उस पर इन्वेस्ट होते हैं आपके। उसके बाद जो इंडिविजुअल्स आते हैं उनको ट्रेन करने पे और उनको एक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल फुली प्रोफेशनल लेवल अटेन करने में टाइम लगता है। सो दीज आर ऑल द कॉस्ट दैट यू आर गोइंग टू बेयर। ठीक है, तो इस वजह से आपने देखना है कि आप जो भी बिज़नेस बाय करने जा रहे हो उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आपको जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा और चेंजेस लानी पड़ेंगी, और कहाँ कि कहीं वो चेंजेस इतनी ज़्यादा ही ना हो कि वो जो आपने एक डील की है, एक जो फाइनेंसेस पे की हैं उस बिज़नेस को बाय करने के लिए, उससे ज़्यादा आपको फर्दर उसकी इम्प्रूवमेंट्स पे इन्वेस्ट करना पड़ जाए और आपको उसका रिटर्न भी कुछ ख़ास ना मिले। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज वेल। फर्दर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं that we should be bearing in mind when we are going to buy a business is that what price and payment methods are reasonable for you and acceptable to the seller। again mode of payment आपका क्या होगा, ठीक है, either you are going to directly get that business or acquire that business on cash, or you are going to opt for partnership or different or you are going to get consultation from the seller as well, or you want to keep the seller as a direct partner or as a sleeping partner। So different modes of acquisition of business are there, and you have to both the parties have to decide that what's mutually beneficial for them। next is will the company generate sufficient cash to pay for itself and leave you with suitable rate of return on your investment। again ये हमारा जो लास्ट हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि how much you are going to invest or how much potential it will further require to attain the success। तो उसी से रिलेटेड है कि जो आप कैश, जिसको भी हमने डिस्कस किया कि जो आप कैश इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आइदर वो जस्टिफाइबल भी है, ठीक है, कि आपको वो उतना रेट ऑफ रिटर्न जो है वो प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज शुड यू बी स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड बिल्डिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड रादर देन बाइंग एन एग्जिस्टिंग वन। अगेन ये जब सारे क्वेश्चंस आप अपने माइंड में प्रोसेस कर लोगे तो फिर आपको
आपको इस चीज़ में क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर आप एक बिज़नेस स्क्रैच से शुरू करते हो, अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस है और आप डिफरेंट जो है एक्सपर्टीज़ रखते हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो आप अगर ख़ुद स्क्रैच से इसको स्टार्ट करो इस बिज़नेस को, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। या फिर आप एग्जिस्टिंग बिज़नेस जो है वो आप बाय कर रहे हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये लास्ट पॉइंट हम लोगों का इस वजह से भी क्रिटिकल होता है इसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि जो भी एक एक्सपीरियंस्ड बंदा भी, अगर आप एक एक्सपीरियंस इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ले लो, तो इट्स नॉट वेरी मच नेसेसरी कि उनके पास मार्केटिंग स्किल्स भी ऑन हैंड अवेलेबल हों। ठीक है, उनके पास जो है पब्लिक रिलेशंस का एज जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है, और उनके पास जो है प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हों या ना हो, और फिर उनका क्रिएटिव साइड जो है वो उसमें कितना पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कभी भी वन मैन आर्मी जो है आपके पास हमेशा अवेलेबल नहीं होती है, यानी कोई भी एक सिंगल पर्सन इतना इक्विप्ड नहीं होता या इतना रिसोर्सफुल नहीं होता कि वो हर चीज़ को स्क्रैच से हर बिज़नेस को स्टार्ट कर ले। ठीक है, एग्जिस्टिंग बिजनेस का फ़ायदा ही ये होता है कि उसमें काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी डेवलप्ड होती हैं, आपने उनको सिर्फ एवेल्युएट करना होता है कि वो कितने आपके लिए सक्सेसफुल रहेंगी या नहीं रहेंगी, और उसकी बेस पे आप उस बिज़नेस को एक्वायर करके यू मूव फॉरवर्ड विद इट। ठीक है, विद योर ओन स्ट्रेटजी। So that is why it is important that you have to see that either will it be feasible to start from the scratch or buy an existing business। इनको हम further डिटेल में देखेंगे by comparing their advantages and disadvantages। तो पहले हम अपने advantages को देख लेते हैं कि advantages of buying an existing business। फर्स्ट वन इज़ दैट इट मे कंटिन्यू टू बी सक्सेसफुल। अगर एक सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा है तो देयर आर प्रोबेबल चांसेस, और उनके जो है जेन्युइनली जो है अच्छे रिटर्न्स जो हैं जनरेट हो रहे हैं, देन देयर इज़ अ प्रोबेबल चांस दैट दैट बिजनेसेस विल कंटिन्यू टू बी सक्सेसफुल। सेकंड वन इज़ दैट इट मे ऑलरेडी हैव बेस्ट लोकेशन। हमने जब बात की थी प्लेसमेंट की, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, so the placement was one of the 4 key elements that was necessary for any business to be successful. So if that business has already got a great location, so it gives you an edge over your competitors. Next one is that employees and suppliers are established. This is what I was saying earlier कि जब आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस लेते हो तो उसमें आपको जो HR हायर करनी होती है, जो आपके सप्लायर्स होते हैं, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो आपका बाकी टेक्निकल नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनमें से एक मेजॉरिटी शेयर जो होता है पहले से इस्टेब्लिश्ड होता है। तो दैट्स वाई यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, यू वरी अबाउट फोकसिंग योर एक्सपर्टीज इन extending that business, right, or in continuing that business. So this is why the employees and suppliers are established is a great advantage to you. And next is equipment is already installed. It is something we have just discussed in relation to this pointer, that कि अगर आपके पास equipment already available है, so it is an edge for you कि आपको उनको further market में उनकी acquisition करना और उनकी tenders if that body is governmental body or otherwise, तो आपको उस हैसल में से उस लीगल और टेक्निकल जो हैसल है उसमें से गो थ्रू नहीं करना पड़ता when you are trying to get an equipment because it's already there. Next is inventory is in place and the trade credit is established. Inventory is related to what you already have on your hand, and or also related to the suppliers that are linked up with you and are supplying with you the essentials to keep your business running. तो ट्रेड क्रेडिट भी आपका उन्हीं के साथ एसोसिएटेड होता है, तो एक जो सप्लाई चेन जो होती है वो भी आपके ऑलरेडी दैट इज़ इन प्लेस एज वेल, सो इट्स मोर स्मूथ फॉर यू टू एक्वायर एन एग्जिस्टिंग बिजनेस.
Further, keeping on with the advantages of buying an existing business is that considering the previous points, you can hit the ground running, right? You can keep on going with that business and earn a profit if it keeps on going well for you. Next is that you can use previous owners experience. इसको हम फर्दर भी जाके डिस्कस करेंगे. इसमें जो आपके प्रीवियस ओनर्स होते हैं उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो मल्टीपल फॉर्म्स में जो है आपको बेनिफिट दे सकते हैं. उसमें से एक तो ये होता है कि उनके पास जो उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं दे रिफ्लेक्ट अ लॉट अबाउट व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इन द प्रीवियस ईयर्स. उसके बाद जो उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बुक्स हैं अगर वो उन्होंने मेंटेन की हुई हैं तो दैट टेल्स यू अ लॉट एज वेल. उसके अलावा जो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एक ओनर का होता है आप उसको जब तक आपकी एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस नहीं हो जाता जिसको हम आगे जाके भी देखेंगे तो आप उस ओनर को एज अ कंसल्टेंट भी अपने बिजनेस में रख सकते हो बिकॉज ही हैज़ द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग दैट बिजनेस दैट यू आर गोइंग टू ओन. So that's why it is very much important as well. Next one is easier financing. Easier financing in a way that you have good credit line with your creditors and other relevant stakeholders. Moreover, our running business has more chances of getting loans from monetary bodies. So it's good for you as well if you are existing if you're buying an existing business. And considering all these points, if all these points are in place, then it's a bargain for you, it's a good go. On the contrary, here are the disadvantages of buying any existing business that will deem it to be a loser. First one is that previous owner may have created ill will. राइट अब आपकी इल विल जो है वो एक ऐसी नॉन टेंजेबल चीज़ है जो आप जब भी कोई एक बिज़नेस एक्वायर करने जा रहे होते हो आप इतनी जल्दी उस चीज़ को जज नहीं कर सकते. वो प्रॉबेबली आपको बाद ही उसकी ट्रू पिक्चर या उसका ट्रू जो इम्पैक्ट है वो आपको नज़र आए. तो और अगर आपकी इल विल अब मल्टीपल एस्पेक्ट्स में हो सकती है आपकी आपके सप्लायर्स के साथ हो सकती है आपके डिफरेंट क्रेडिटर्स के साथ हो सकती है आपके इवन के जो इंटरनली हायर्ड आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ हो सकती है आपके जो प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स हैं उनके साथ हो सकती है. हो सकता है जो प्रोडक्ट या सर्विस लेवल आपने इनिशियली प्रमोट किया हुआ था जब आप उसको बेच रहे थे तो आपकी जो गुडविल थी अपने कस्टमर्स के साथ इतनी एक जो आपने एडवर्टाइज लेवल है उस पर नहीं थी. ठीक है. सो दिस इज समथिंग वेरी मच इंटेंजिबल एंड इट्स वेरी हार्ड टू observe but it's very much necessary that you get as much knowledge. And next is the inherited employees may be unsuitable. सारी सी बात है जब आपका एक न्यू लीडर अपॉइंट होगा उस बिज़नेस के अंदर तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी उतनी ही लॉयल्टी वो एम्प्लॉयज़ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ शो करें जितने वो प्रीवियस ओनर के साथ कर रहे थे. उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है डिफरेंस ऑफ नेचर हो सकती है. अगर आप बहुत ज़्यादा लेट्स सपोज एक डिसिप्लिन लीडर जो है इम्पोज कर देते हैं या शिफ्ट देखने को आता है इन द न्यू इन द एक्वायर्ड बिजनेस में कि उसमें एक जो आपका नेक्स्ट लीडर आया वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है लेकिन एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़रा लेड बैक हैं. ठीक है. तो वो जब इस तरह की एक डिफरेंट नेचर ऑफ द लीडर देखेंगे तो वो दे वॉन्ट कोऑपरेट मच. ठीक है. और अगर आपके एम्प्लॉयज़ ही आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो देन यू वॉन्ट गेट द ऑप्टिमल रिजल्ट्स. लाइकवाइज कुछ जो क्रिएटिव एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कंपनी में ग्रोथ के चांसेस चाहिए होते हैं. अब कोई ऐसा लीडर आ जाता है जो कि डे टू डे ऑपरेशन से बिलीव रखता हो और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी या बहुत ज़्यादा इनोवेशन में बिलीव ना रखता हो. सो इट्स अ सेटबैक फॉर दोज क्रिएटिव एम्प्लॉयज़. राइट. तो दैट इज़ वाई again the employees may be unsuitable for you because they are looking for something else and the next owner is looking for something else. And next is the location may have become unsatisfactory.
इन अ वे कि आपका जो बिज़नेस जो आप बाय करना चाह रहे हो वो ऑलरेडी जो पोटेंशियल रखता था, लेकिन हो सकता है ओवर द इयर्स वहाँ पे मल्टीपल जो है डिफरेंट आपके कंपेटिटर्स इन प्लेस आ गए हों और आपकी मार्केट सैचुरेट हो गई हो। सो वो लोकेशन जो है वो फिर इतनी सेटिस्फैक्ट्री फॉर द पोटेंशियल कस्टमर जो है नहीं रहती। उसके अलावा जो है कोई और डिफरेंट लोकेशन हो जो कि एक न्यू हॉटस्पॉट बन गई हो फॉर द बिजनेस, या कोई डिफरेंट बिजनेस सेंटर ओपन हो गया और सारी टेंशन जो है जो पॉपुलेशन जो उधर की लोकल पॉपुलेशन है या अदरवाइज इंटरेस्टेड पॉपुलेशन है उसका इंटरेस्ट जो है जिस लोकेलिटी में आप ऑपरेट करने जा रहे हो उससे हट के उस डिफरेंट लोकेलिटी की तरफ हो गया और उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। सो अगेन that case as well, that location may have become unsatisfactory and is not good if you are going to buy a business in that area. Next is that equipment may be obsolete or inefficient. अगेन हमने बात की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका जो टेक्निकल इक्विपमेंट है दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर यू, लेकिन हो सकता है जो आप बिज़नेस बाय करने जा रहे हो उसमें अगर आप सिंपल एग्जांपल ले लो तो जो आपके पीसीज उधर आप एक्वायर करोगे व्हेन यू गेट दैट बिजनेस एज एज अ टेक्निकल इक्विपमेंट, तो हो सकता है कि वो इतने अप टू डेटेड उनमें हार्डवेयर ना हो, तो वो आपके भी किसी काम के नहीं होंगे और अगर आप उनको यूज़ भी करते हो तो दे मे नॉट बी ऑब्सलीट बट दे मे बी इनएफिशिएंट। तो उसमें आप जो है इफ़ेक्टिवली अपने ऑपरेशंस जो हैं उनको रन नहीं कर सकते। सो यू हैव टू लुक फॉर दैट एज वेल। फर्दर गोइंग ऑन विद द डिसएडवांटेजेस, अगर आप देखें टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट हमने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देखी थी, हमने एजाइल और वाटरफॉल को जिस तरह डिस्कस किया था, या जो कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग पेपरलेस है, यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका एक शिफ्ट कंप्यूटर्स एंड want to transfer the data and communicate all through the computer network. So it may not be practical in for every business and it may not always be necessary for every business. So you have to look for the right innovation and you have to justify it for its implementation, that what benefits can you attain from it, and either it is the right one for you or either it can be implemented or not. So हर एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो इनोवेशन आपने एम की हुई अपने फर्दर बिजनेस के लिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सको। इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इम्प्लीमेंट क्योंकि उसमें आपको फर्दर कॉस्ट प्रॉबेबली बेयर करनी पड़े। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट एज वेल। नेक्स्ट वन इज़ दैट इन्वेंटरी मे बी स्टेल, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ द फूड इंडस्ट्री, उसमें आप कोई होटल बिजनेस है वो एक्वायर करना चाह रहे हैं और उनके पास जो है एक एक्सटेंसिव इन्वेंटरी जो है वो दैट इज़ अवेलेबल एट हैंड, लेकिन उनकी जो एक्सपायरेशन है दैट इज़ वेरी मच नियर। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो बाय द टाइम यू एक्वायर दैट बिजनेस दैट इन्वेंटरी मे हैव गॉन स्टेल। ये तो मैंने आपको फूड इन्वेंटरी की जो एग्जांपल है दी। लाइकवाइज आपके अगर ऐसी इन्वेंटरी है जिसमें आपके किसी बिजनेस में ऑटोमोबाइल्स जो है फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस अवेलेबल हैं, राइट, एंड इन दैट सिनेरियो वो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं वो रस्टेड हैं और उनकी कदर टाइम ये एक्वायर दैट business, they may not be in as much as a good condition as you want. You have to look into inventory as well very carefully. Next one is the account receivable may be worth less than the face value. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी कोई businesses आप बाय करने जा रहे होते हैं तो आप हो सकता है कि उनकी आपको जो फेस वैल्यू लग रही हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ आप बिजनेसेस अपनी रियल लाइफ में आकर देख लो तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उस बिज़नेस में बहुत गेट इनटू इट आपको रियलाइज़ होता है कि
जो अपेरेंटली लग रहा था कि आपको इतना प्रॉफिट जनरेट होगा, इट मे नॉट बी द केस। सिंपल आपको मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसकी। आप ऑटोमोबाइल अगर ट्रेड की एग्जांपल ले लो, ठीक है, उसमें एक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप अगर गाड़ियाँ डिफरेंट इंपोर्ट कर और आपको उनको रिकंडीशन करके अगर रीसेल कर रहे हो, सो इट मे मेक यू अ मिलियनर इन मैटर ऑफ डेज, बट दिस मे नॉट बी इट। लाइकवाइज अगर आप रियल स्टेट की बात कर लो, ठीक है, कि इफ़ समवन इज़ डीलिंग रियल स्टेट, यू मे think that this business has got a lot of potential in it and may make you millionaire और होती है एक जो बेसिक जजमेंट होती है किसी भी बिजनेस के बारे में, दैट इज़ समथिंग ऑन द ब्रॉडर स्केल। फिर यहाँ पे डिफरेंट स्कैम्स भी होते हैं जिसकी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशंस भी जो हैं डिफरेंट एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगी। उसमें यह होता है कि जब आप तो वो जो सेलर होता है वो ही प्लांट्स पीपल इन दैट बिजनेस विसिनिटी। फ़र्ज़ कर लें कोई अगर आपकी यानी अगर डील एक्सपेक्टेड है कि विद इन अ वीक जो है इट विल टेक प्लेस, सो वो जो सेलर होगा probably to scam you, he may place the people of his own uh, in his business area, right? कि वो आपको रिप्रेजेंट इस तरह लग रहा होगा कि वो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और उनके बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन इन रियल टाइम्स वो होगा ये कि उनके अपने ही प्लांटेड किए हुए लोग होंगे। तो वो फेस वैल्यू में भी आपको उन कस्टमर्स को अपेरेंटली देख के ज़्यादा लगे, लेकिन यू शुड नॉट go for the face value only. You have to look into the technical details as well to justify if that business is worth buying or not. It may be overpriced. Again, every deal you get is not always priced right. The seller is always trying to get as much possible. So you have to be considering all the pros and cons of that business. You have to justify the price yourself, that what you are paying, is it right or is it wrong. And you can also definitely consult experienced people to judge the price right. Okay, next is when we come to acquiring the business, the research has reflected that 50% of all business acquisition fail to meet buyers expectations, right? तो जो 50% बिजनेसेस जो होते हैं, जो भी टोटल बिजनेसेस एक्वायर होते हैं, उनमें से 50% जो होते हैं दे ऑफन फेल टू मीट द बायर्स एक्सपेक्टेशन। उसकी रीज़न यही होती है कि वन वे और अनदर जो है कोई ऐसा एरिया होता है जो बायर ने नहीं देखा होता है या उसको सही तरह एवेलुएट नहीं किया होता और उस बेस पे उसको डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं। सो कंसिडरिंग द राइट वे ऑन ब्रॉडर स्केल, यू should analyze your skills, your abilities and interest, right? And then prepare a list of potential candidates and remember the hidden market, right? Hidden market definitely जब भी आप कोई एक बिजनेस ख़रीदने जा रहे होते हो तो अक्सर जो आपके एक जो भी पोटेंशियल बायर्स होते हैं दे गो फॉर द फेस वैल्यू, जिस तरह हमने बात की थी कि ये जगह जो है बहुत बूमिंग है और यहाँ पे अगर हम बिज़नेस करेंगे तो देर आर हाईली चांसेस ऑफ सक्सेस। तो यू शुड नॉट इग्नोर द अदर कॉन्टेंडर्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। यू शुड नॉट ओनली ऑप्ट फॉर द फेस वैल्यू। सो जो दूसरे बिजनेसेस हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उसी सेम डोमेन में जो आप करना चाह रहे हो, जिसको आप एक्वायर करना चाह रहे हो, तो आप डेफिनेटली जो बाकी कंपेटिटर्स हैं उनको भी डेफिनेटली देखें, ठीक है। और हो सकता है कि उनमें आपको कोई डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऐसे क्लिक कर दें जो कि आपको एक कंपेटिटिव एज दे देंगे और आपको जो है आपका बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकता है उससे। ओके, नेक्स्ट विद एक्वायरिंग अ बिजनेस, इन्वेस्टिगेट एंड एवेल्युएट कैंडिडेट्स बिजनेसेस and select the best one, right? You should have multiple options. You should not just go for only and only one. You should first try to search the market as much as possible.
with as much as resources you have at hand. Next is exploring the financing options. If you are looking to acquire a business or you are looking for uh, extending it, you should look for financing options as well. नेक्स्ट इज इंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन. ट्रांजिशन की अभी हमने पिछली डिस्कशन में बात की कि जब आप कोई बिज़नेस जो है एक्वायर करते हैं तो वो सिर्फ एक पेपर साइन करने के बाद वो टोटली आप उस बिज़नेस को एक दिन में जाके कभी भी नहीं संभाल सकते. देयर आर अ लॉट ऑफ डायनामिक्स टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. नंबर वन उसमें बहुत बेसिक आपका जो है कम्युनिकेट विद एम्प्लॉयज़, बिकॉज the next leader of that business is supposed to take those employees into confidence that uh, he is supposed to earn the goodwill of those employees so that they can work well for their leader. Next is be honest, right? You should be honest with your suppliers or all the stakeholders with your employees, so that all the individuals can be on one page when it comes to acquiring the goal of associated to any business. Next one is listen. Obviously जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करते हो और आप उसके लीडर बनते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू लिसन टू देम एंड लिसन टू योर पीपल क्लोजली, बिकॉज वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस उस ऑर्गेनाइजेशन का होता भी है. ठीक है. और उसके बाद अगर जितना आप उनको सुनोगे उतना ज़्यादा वो दे विल बिलीव इन यू एंड यू कैन ईजीली अर्न द गुड विल. इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू विन द हार्ट ऑफ योर पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड. नेक्स्ट वन इज़ कंसिडर आस्किंग द सेलर टू सर्व एज अ कंसल्टेंट थ्रू द ट्रांजिशन. अगेन ये मैंने बात की थी कि डिफरेंट आपके जो होते हैं तरीके होते हैं जब आप बिज़नेस एक्वायर कर रहे होते हो, उसमें आप डिफरेंट वे आउट दे सकते हो अपने सेलर को. तो उसमें अगर आप उसको हायर कर ले तो कंसल्टेंट एज अ कंसल्टेंट किसी भी सेलर को, सो सिंस ही इज़ द previous owner of your business, he can guide you on a leadership level. So it's a good consideration that should be taken into account. Here we are next with the 5 critical areas for analyzing an existing business. Number is you have to see what's the real reason that the owner is selling that business. क्योंकि अगर आप एक real reason जो है वो judge कर पाते हो, then it's easy for you to look into rest of the matter as well. Next is what is the physical condition of the business. इसमें हमने वैसी बात है जो बात की थी कि हमारा जो इन्वेंटरी है और हमारा जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो इक्विपमेंट्स हमारे पास एट हैंड अवेलेबल है वो कितना फिज़िकली साउंड कंडीशन में अवेलेबल है. Next is what is the potential for companies products or services, considering the customer characteristics and composition and competitors analysis. तो ये आपके मार्केट स्टडी है, इसको आपने देखना होता है कि जो आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर कर रहे हो कितनी रेलेवेंट हैं, considering your customer in that market and your competitors in that market. You have to see कि वो मार्केट इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड ना हो कि जिसमें आपको कट थ्रोट जो है कंपटीशन मिल रहा और जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा लो. नेक्स्ट इज़ यू हैव टू लुक इनटू द लीगल मैटर्स so that you could assure that you are not getting into any kind of legal trouble. Next is the business financially sound, that you should make sure that all your financial matters are in line and that the business is supposed to earn you profit rather than becoming a liability. तो जब हम लीगल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं ख़ास तौर पर फाइनेंसेस में, फाइनेंशियल टर्म्स में, तो उसमें आपके पास फर्स्ट थिंग इज़ लीन एंड द नेक्स्ट इज़ बल्क क्रेडिट. लीन इज़ क्रेडिटर्स क्लेम अगेन एन एसेट. जब भी आपका कोई एक बिज़नेस होता है एंड इट्स रनिंग ऑन बेसिस ऑफ क्रेडिट, so there is definitely claims against an asset for those credits.
that are posed by those creditors. तो आपने इस चीज़ को पहले जज करना होता है कि जितने भी आपका बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसमें कितने क्रेडिटर्स इन्वॉल्व हैं और आपके कौन कौन से एसेट्स जो हैं वो सिंपल टर्म्स में जो है गिरवी रखे गए हैं, so that in case of anything goes wrong they are rightfully able to sell your that specific part of your business asset. Next is the bulk transfer that protects business buyers from the claims unpaid creditors might have against a company's asset, right? Considering the aspects of bulk transfer, the seller must give buyer a sworn list of creditors. तो इसमें it is the responsibility of the seller कि वो जितनी भी sworn list of creditors हैं वो buyer को transparently provide करे. Next one is buyer and seller must prepare a list of property included in the sale. Right? जो आप डील करने जा रहे हो उसमें जो आपकी सेल होने वाली है प्रॉपर्टी, उसकी अपनी एक डेफिनेट और क्लियर लिस्ट बनानी है. Next is that buyer must keep the list of creditors and property for 6 months. ठीक है. इसमें जो buyer होगा he has a right that he can keep that list, जिसमें जो है सारी जो आपकी प्रॉपर्टी है अगेंस्ट दोज क्रेडिट्स जो है और जो डिफाइंड क्रेडिटर्स हैं वो उसमें मेंशन्ड है. Last one is buyer must give written notice of the sale to each creditor at least 10 days before he takes possession of goods or pays them, whichever is first. तो जब आप कोई भी बिजनेस बाय करने जा रहे होते हो तो आपने रिटर्न नोटिस देना होता है सेल का हर क्रेडिटर को जो आपके पास अर्लीस्ट सॉर्न लिस्ट है उसमें मेंशन्ड होते हैं, सो दैट दे कैन नो that you are going to make this deal and which part of that business is under the aspect of lien and which one is not, so that they can cross verify it as well. So further moving on with the legal aspects of buying a business. First one is the contract assignment that defines the buyer's ability to assume rights under the seller's existing contracts. के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एक सेलर ने साइन किए हुए थे उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए जो बायर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है अज्यूम करता है. नेक्स्ट इज वन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट. इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ कि जब आप कोई भी एक बिज़नेस, हमने एक मार्केट सैचुरेशन की बात की थी कि मार्केट सैचुरेशन तब होती है जब देयर आर टू मैनी कंपेटिटर्स इन दैट ऑपरेटिंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशन. सो जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो आप फॉर ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम या एक स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन में जो है रिस्ट्रिक्ट कर देते हो अपने सेलर को कि वो वहाँ पे सेम नेचर का बिजनेस जो है ऑपरेट नहीं कर सकता, दैट ही कैन कम्पीट यू एज अ कंपेटिटर इन द सेम रीजन फॉर दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, राइट. सो ये इनडेफिनेट हो या स्पेसिफाइड ईयर्स के लिए लिमिटेड हो, सो अगेन इट विल बी डिसाइडेड बाय द सेलर एंड द बायर. एंड नेक्स्ट वन इज ऑनगोइंग लीगल liabilities that are defined on basis of physical premises, product liability and लेबर रिलेशंस. तो ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप ओन करते हो व्हेन यू आर एक्वायरिंग ए बिजनेस. सो दैट वाज इट फॉर टुडे, एंड टुडे वी फर्स्टली डिस्कस्ड अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस. देन वी मूव्ड ऑन द steps that may lead us to acquiring a business in a much better way and avoid as much losses as much possible. And lastly we discussed about the process of evaluating and existing businesses, and we further discussed the legal aspects of associated to them. So that is it for today, and hope to see you in next lecture.